I am Rajendra Simori, your maths teacher. Today I am going to take the video lecture in mathematics unit number 2, polynomials. Now every students know that in class 9th we already studied these chapters, but in class 10th that is very important year for you, and we have to go for the functionally for the polynomials. So today we are going on to that way, and we just taking each and everything as an introduction part in my first video lecture. So I hope so that everybody has to get these things and everybody has to keep watching very silently and takes whatever the necessary notes you have to also parallelly you have to take. So first of all we are going on to the content part. This content part in this unit we have to cover total 4 points, and these 4 points, first it is related with the introduction. So inside the polynomials in 9th standard also we have to some of the portions like what is the polynomials, types of polynomials, degrees, coefficient, that all the fundamentals we know. But in 10th standard this all fundamentals based is same here, and we starts from that base. So we have to going thoroughly inside the introduction part. In the geometrical part we have to using here some of the portions inside the polynomials. This is a geometrical meaning and this is the geometrical meaning. It means we have to going thoroughly in this graph. So we have to going for this chapter inside the graph. Third thing, we have to also going for the relation between the zeros and coefficient of the polynomials. So these 3 points, it is very important for the short question in board examination. So this third portion is very important for find out the relation between the zeros and the coefficient. Sometimes this is very easy, no doubt, but हमें कैसे पता चलेगा कि यदि हम zeros कोई भी पोलिनोमियल्स के सामने यदि हमने ज़ीरो रख दिया तो इसके बराबर ज़ीरो हो जाता है, तो जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू यदि हम वो पोलिनोमियल्स में रखते हैं तो वो दोनों पोलिनोमियल्स की वैल्यू से हमें फाइंड करना है कि विच आइटम्स इफ वी पुट इन द प्लेस ऑफ दैट एक्स और वाई या जेड और एनी वेरिएबल एंड वी गेट 1, 2, 3, whatever the value. So these things is a part and parcel of the relation between zeros and coefficient. And fourth one part, this is the 4-1 part, and this 4-1 part is related with the division algorithm for the polynomials. We also this very consider with the division algorithm. This is the one kind of algorithm that is also already we studied in class 9th. Dividend is equal to divisor into quotients plus remainder. That kinds of the division algorithm already we studied in the 9th standard. Same thing we are using over here. But sometimes we also we use the remainder theorem algorithm, division algorithm. This both algorithms we have to using over here. So these are the 4 fundamentals, and these all 4 fundamentals we covered into this video.
So let us start without wasting the time. Let us start into the next portion, and this next portion is considered that suppose we are using that introduction parts. What is the introduction? मतलब हम ऐसा मानते हैं कि पोलिनोमियल्स है तो सर हमें यही करना है कि पोलिनोमियल्स है तो वो मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ये सभी बातें ध्यान में रखने तो पोलिनोमियल्स ख़त्म नहीं. पोलिनोमियल्स इज वन काइंड ऑफ algebraic expression. Just we have to cover here, must be focused over here. That is also be given here, that the portion is suggesting here that polynomials are algebraic expression that includes all the real numbers, constant and the variable. So this two line it suggests that polynomials is a one kind of expression and it is a one kind of algebraic expression. एक ऐसा algebraic expression है जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, सम एरिथमेटिकल साइन भी है. ये सभी को मिला के जो भी एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स बोलते हैं. और पोलिनोमियल्स भी इतनी सारी डिवीज़न और स्क्वायर के बारे में हमें चलाता है कि जब भी हम बोलते हैं कि सपोज एक टर्म्स होती है तो पोलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, दो टर्म्स होती है तो क्या बोलते हैं, थ्री टर्म्स होती है तो क्या बोलते हैं. तो इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है एंड ट्राइनोमियल है. तो ये तीनों चीज़ को मिला दो तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलेंगे, टू टर्म्स है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स जिसमें होती है वो सभी पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? पोर्शंस इज कंसिडर्ड. सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो दिस इज नॉट अ very hardest thing because that is already we studied in 9th standard. But question is raised here कि suppose हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ये इंट्रोडक्शन हो गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बारे में हम बोल सकते. तो बाद में जो डिग्री का पोर्शन आता है, डिग्री का पोर्शन हम ऐसा बोलते हैं ना कि डिग्री जब भी हमारे पास होती है तो हम क्या बोलते हैं कि डिग्री जो भी है हमारे पास हम इसको ऐसे ही कवर करते हैं जब हमारे पास डिग्री के रिलेटेड कोई भी पोर्शन आए. टर्म्स के रिलेटेड तो हमने समझ लिया, बट डिग्री के रिलेटेड हमें समझना है तो कैसे समझे, डिग्री किसको बोलते हैं. तो ये चीज़ भी इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर्ड अप की गई है, वो भी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख गए. सो फर्स्ट थिंग इज दैट if any algebraic expression having power, either it power starts from the 0, then 1, then 2, then 3, then 4, whatever. So if it starts the exponent and power in the based on that expression, then we can another types of the polynomials, and we can also further divide these polynomials into the further parts of the polynomials. So first of all, if having the exponent or power is 1, here concern that just seeing here that if the degree of the term is the exponent of the variable, here given that 3x square has a degree of 2. Why it is 2? Because we know that 3x square is the exponent of that expression, and that's why we can say that it having the degree 2. इसका मतलब सीधा से ये हो गया कि जो भी टर्म्स है वो टर्म्स के ऊपर जितनी भी पावर या एक्सपोनेंट हम इसको बोलते हैं वो लगाई गई है, वो ही डायरेक्ट इसकी डिग्री बोला जा सकता है. और एक चीज़ यहाँ पे
जो आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए और आपको याद होगा कि यदि सिंगल वेरिएबल है तो समझ में आ जाता है कि 3x² है, सभी पूरा एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल का यूज़ होता है। तब हम जो भी वेरिएबल है इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी है वो एक्सप्रेशन का डिग्री हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि यदि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तब हमें क्या करना है, वो चीज़ भी हम 9th स्टैंडर्ड में सीख गए कि जिसका भी एक्सपोनेंट पावर है वो ज़्यादा है वही हमारा डिग्री कहलाता है। तो अभी हमें तो यहाँ पे ये सीखना है कि जिसका जो भी एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट कितना है, 1 2 3। यदि 1 है तो हम इसको बोलते हैं मोनोमियल, और we can say that it's considered as a linear, not monomial. Monomial is based on the terms while linear is based on the degree. तो डिग्री से भी 4 टाइप्स हम पोलिनोमियल्स का डिफाइन कर सकते हैं। जिसकी डिग्री 1 हो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 2 है इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 3 है इसको हम बोल सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। एंड जिसकी डिग्री 4 है इसको हम बोल सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक। सो इन द 10th स्टैंडर्ड we have to go only for the degree 1 2 and 3, that kind of the sums most probable asked into the examination. So first of all, no doubt this is a very easy things, and we also know that okay, this is the introduction part and we also knowing about that. Now we are going on to the third portion. We all know that the polynomials के बाद हमें ये सीखना है कि पोलिनोमियल्स एक्चुअल में किसे कहा जाता है। तो वो शॉर्टेस्ट थिंग्स मैंने यहाँ पे रखी। आप अपनी टेक्स्ट बुक लगातार इस पे से देखते रहे, क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक में डिफाइन है वही चीज़ फाइनलाइज में MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में इवन आ सकती है। तो हमें कभी भी अपना टेक्स्ट बुक की कंटेंट है उसको हटके कहीं से भी कोई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो NCERT का जो भी टेक्स्ट बुक है जो न्यू लॉन्च ही हुआ है गई साल से, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे कवर करनी है। पर फिर भी हमें थोड़ा ऐसा भी मेरा मानना है कि यदि हमें पोलिनोमियल्स के बारे में सीखना है तो हमें और क्या चीज़ ऐसी सीखनी है, ऐसी कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शायद आपको दिखता होगा पूरा। सो दिस इज़ अ प्योर डेफिनेशंस ऑफ द पोलिनोमियल्स हियर। Polynomials is an expression made with the constant variable and exponents. It is made up with the different expression, constant, variable, and sometimes we have to put into the expression. These expressions we have to cover with the combinations of some of the signs with the arithmetic operations like addition, subtraction, and multiplication. But here one thing's always be keep in your mind that we never use the sign of division. All 4 signs we are not used here into the polynomials for deciding the polynomials. We have to use only the 3 sign addition, subtraction, and multiplication, and that is the form of making a one polynomials. So this is a clear-cut polynomials concept, and we are also used into the second portion, that is exponent, and exponent can only be either 0, 1, 2, 3, etc. We all know that in the previous portion we also seen that if we have to find out 3x square, so 2 is a exponent of that terms.
So here we are using a polynomials cannot having the infinite number in terms. ये भी एक रियल थिंग है, फैक्ट थिंग है कि कभी पोलिनोमियल्स ऐसा नहीं हो सकता कि कितनी भी टर्म्स को आप लगा दो और वो सब पोलिनोमियल्स हो जाए, ऐसा कभी बनता नहीं है. हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि हमारे पास कोई भी टर्म्स है, तो हमने पहले सीख लिया है कि एक टर्म्स है तो हम मोनोमियल बोल सकते, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल बोल सकते, 3 टर्म्स का पोलिनोमियल्स है तो हम उसको बोल सकते हैं ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स के ज़्यादा जितना भी हो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इसको हम पोलिनोमियल्स ही बोल सकते हैं. सेम थिंग यदि इसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 से स्टार्ट होता है, 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट जो भी वैल्यू है इसका ये डिग्री ऑलवेज कितनी होती है, 0. बट जिसके ऊपर डिग्री 1, 2, 3 लगा सकते, तो 1 हमने अभी भी सीखा कि जिसके ऊपर 1 डिग्री है इट इज़ ऑलवेज कंसिडर द लीनियर पोलिनोमियल. जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 है इसको हम क्यूबिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 4 है उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं. वही चीज़ यहाँ पे ट्राई किया है कि सपोज़ हम एक पोर्शंस यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने यहाँ पे देखा कि एक्सपोनेंट है वो 0, 1 एंड 2 है. यहाँ पे आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स दिया गया है, वो क्या है कि 5xy² माइनस 3x प्लस 5y³ माइनस 3. तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ पोलिनोमियल्स. वाई इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स? बिकॉज they all are having the variable, constant and the exponent. So very easy, this definition is very clear. Those expression having the variable, constant and exponent with the different arithmetic sign only for addition, subtraction and multiplication signs. If we found this kinds of the algebraic expression, we directly say that it is a polynomial. और आपने एक बात यहाँ पे देखी हो तो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है. देखो 0, 1, 2, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है हम सब जानते हैं कि दैट इज़ अ होल नंबर. 0, 1, 2 यदि 1 से स्टार्ट होता है दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर द नेचुरल नंबर. सो इफ़ हम नेचुरल नंबर में यदि 0 मिला दे तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर. तो कोई भी एक्सप्रेशन का जो भी एक्सपोनेंट है, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी अ होल नंबर. इट मस्ट बी ए होल नंबर मतलब it starts from the 0, 1, 2, whatever. So here consider that inside that expression we have seen here that 2 and 3 both are the exponent and both are the whole number. So that's why we can say that it's a consideration about the polynomials. Or here given that one of the portion that not a polynomial. Why we can say that here in the not polynomials? These two things here, consider 2 things here, and this both things is considered here. One is that and second one is also be there. So first of that 3xy and 3xy minus 2, and this minus 2 is used here. Minus 2 is not a whole number, so that's why we can say that it's not a polynomial. 2 upon x plus 2, it means it's a fractional part, so it is also not a whole number and it's not considered as a polynomial. So both example not considered as a whole number. So just we have to define here that which one is a polynomials and which one is not a polynomials. That's consideration is important here.
Now, next portion, we just going on to that. कि suppose we are using पोलिनोमियल्स एंड नॉट पोलिनोमियल्स की बातें चल रही है यहाँ पे, तो ये भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स है कि किसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे और किसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2x², दिस 2x² प्लस 6x माइनस 9, 10x minus 1 plus 6x square, that is not a polynomials, but polynomials having 2x square plus 6x minus 9, here exponent is the whole number and having the combination of the variable. So x matlab this is only having the one variable. Minus x cube plus 9, that is the second one because it is also a polynomials, but here given that in not polynomial list under root x माइनस 2, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 का मतलब ये होता है कि x के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट आएगा वो अंडर रूट की वजह से कितना आएगा 1/2 आएगा. 1/2 इट्स नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स वाई इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर 4 plus 5x cube minus 8x square plus 12x plus 24. We can put like that way because it is the example of biquadratic, because it having the degree 4, highest component exponent कितना है 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि this one example of the polynomials is known as the biquadratic having the 4 degree. Same thing we are using into the not polynomial part, 3/x plus 5. So 3/x it's a fractional. यदि हम उसको ऊपर रखेंगे तो 3 into x raised to minus 1/2 होगा. So that is not a whole number. So that's why we can say that it's not a part of the polynomial. So this is a understanding point of view. We have to knowing about polynomial and not polynomial. So let us start with some of the examples here, and that is examples is also be important here. So first of all we are considered p of x is equal to 3x minus 2 is a polynomial in variable x. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो ये x का वेरिएबल का पोलिनोमियल्स हो गया. दूसरा हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो q ऑफ x है, जहाँ पे पूरे पोलिनोमियल्स में वेरिएबल y दिख रहा है. 3y² minus 2y plus 4 is a polynomials in variable y. Same thing we are using f of u, that is also using 1/2 u cube minus 3u square plus 2u minus 4 is a polynomials, no doubt, but it using the variable u. So each and everything we are using that 3x minus 2, just we are concerned here first portion 3x minus 2. Now this 3x minus 2 को आप समझो तो 3x, x is a variable and 3 is a coefficient of x and x having the degree 1 only. जिसकी डिग्री या जिसका एक्सपोनेंट नहीं दिया जाता है उसको हम क्या समझते हैं 1 समझते हैं. तो यहाँ पे ये आपने गौर से देखा कि कोई भी पोलिनोमियल्स में 3x minus 2, यदि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे तो 3x minus 2 है, तो x is a variable and 3 is a coefficient of the x. यदि हमें बोला गया है दूसरे एग्जाम्पल्स में कि यदि मैंने ऐसा बोला कि सेकंड एग्जाम्पल जो है आपका ये वाला 3y² minus 2y plus 4, यदि इसमें मैंने ऐसा बोला कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम इमीडिएट वे से बोल सकते हैं y का कोएफिशिएंट होगा -2. मतलब जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा उसकी साइन के साथ हम जो चीज़ लगा रहे थे उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. वही सेम एग्जाम्पल्स में यदि मैंने ऐसा बोला कि y² का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम वेरी फास्टली रैपिडली उसका आंसर देंगे क्या 3.
और कांस्टेंट इसमें क्या है, तो हम ऐसे बोल देंगे 4। तो ऊपर के एग्जाम्पल पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में भी कांस्टेंट वैल्यू कौन है, पी ऑफ एक्स में -2। जब भी हम कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे या वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, हम उसके साइन के साथ ही इसका आंसर याद रखेंगे। ये चीज़ है वो फंडामेंटली हम 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। फिर भी ये ऐसी चीज़ है, जितना हमको इजी लगता है वही पोर्शन हमें कभी कभी मुसीबत भी दे सकता है। सो स्टूडेंट्स, we don't fail on it and we have to concrete solution to get. Whenever we have to we remembered with the base. So that is our aim, and that aim is get us with the success in the future. So this is very easy things, and we also using now the portions covered up into the next different types of the polynomials here. That is also be going on to the in the previous talk in this video, but again we have to cover up that on the base of the number of terms. We have to divide in 3 parts: monomial, binomial and trinomial. Monomials means what? It having only one terms. Here also given the example like 4x 8y. For x it having only one terms, that's why this kinds of the polynomials known as the monomial. Second one is the binomial, and binomials having the 2 terms. So we can also showing from the example like 2x plus 6. So this it has the 2 terms. 25 minus 25, that is also 2 terms. So these 2 terms having, it means it's binomial. And in the trinomials it's very easy because of it has 3 terms. We are using that 2x minus x cube plus 25, x square plus x cube plus 5x square minus 8, that is also 3 terms. So we can say that it's a trinomial. So that is different types of the polynomials based on the terms and based on the degree. Both things always we keep in our mind. Now we are moved on to the further points, degree. So based on the degree, what do you understand about the degree? That is also a cover up part into the textbook. So degree is the terms with the greatest exponent, जिसका exponent ज़्यादा है. greatest मतलब बड़ा. greatest exponent वाली terms को हम डिग्री के एक्सप्लेन कर सकते हैं. So we are using here that here given that suppose we are using that y square, only one terms having, but now we have to decide here the degree. So y square, so y is the base and 2 is the exponent. That is no, y is the base and 2 is the exponent of this term. So we are using that here given some of the examples. P of x tan x cube plus 1 upon 2. Very interesting polynomials here. So if we want to say that how much degrees of this polynomials, 4, obviously 4. Why? Because tan x 4, x is the base and 4 is the degree. Then the second expression and second terms, there is no any kind of the x, and that is not, because we have to take here the highest exponent. So highest exponent is 4, that's why p of x is the degree 4. Same thing we are using 8x cube plus 7, obviously the degree is 3. Next one, 5x cube minus 3x square plus x minus 1 upon under root 2 is a polynomial in the variable x of degree 3 because of highest exponent of degree 3. हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3 है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसी कितनी सारी चीज़ है. नीचे का एग्जांपल है तो 8u raised to 5 plus u square minus 3 upon 4 is also one of the polynomials and having the degree is 5 because u is the highest exponent. So that's why the degree is 5.
So this portion is concerned with the degrees. Now we are going on to the further. More information regarding the degree. That is also be very easy things, and that is the fundamentals already you studied in 9th standard also. So that is, don't worry if you miss something inside this video. Constant polynomials. Now the important things you always remember that constant polynomials having degree 0. Suppose in any expression we found any numbers, single numbers, for example 32 minus 5, that all are the constant polynomials. If it is given in the one terms, we can say that it's a constant polynomials, but that polynomials having the degree 0. Same thing in the linear polynomials, that polynomials having the degree 1. Quadratic polynomials, that having the degree 2. Cubic polynomials, that is having the degree 3. And biquadratic polynomials, that having the degree 4. That is only here given that you should understood about the constant having the 0, linear having the 1, quadratic having the 2, cubic having the 3, and biquadratic having the 4 degrees. That's why you understand thoroughly. That's why I given information regarding the degree. Now we moved on to the zeros of a polynomials. We just take it out into our entire content, and that's why we covered up the introduction part in this video. So little bit it's refreshing of the 9th standard, and sometimes we are going on to the next portion. That's why it is very beneficial for us. So first of all, we are going that if we are using the zeros of a polynomials, now any kind of the real number alpha. Now we are concerned about the two terms that is newer for you in 10th standard, that is some 3 Greek words. You also studied into the textbook, and you also watched out and refer the textbook. Inside the textbook, the page number 22-23, that is also be given the one note here that this alpha, beta and gamma, that is the 3 Greek words, and these 3 Greek words is help us to find out the zeros in the polynomials. So we have to also using that. So here given that a real number, कोई भी एक real number है, यदि हम कोई भी polynomials, suppose here given है f of x को हम यदि 0 कहना चाहते हैं, if we consider that given polynomial f of x is equal to 0, then what we have to do? So first we have to start with that. Here given the example that f of x is equal to, here given one polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6. So just we have to check out that ये पूरा जो polynomials है, इसमें कौन सी वैल्यू x की जगह रखने से ये पूरा पोलिनोमियल्स 0 हो जाता है, वो चीज़ को हमें देखना है. तो हम स्टार्ट करते, वैसे तो हम स्टार्ट करते 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से वो 0 होता है, 1 से 0 होता है, 2 से 0 होता है. वो चीज़ हम क्या कहते हैं, डिबगिंग एरर एंड ट्रायल एंड डिबगिंग जस्ट वी हैव टू यूज द लाइक दैट वे. So first of all, in 9th standard also doing this kinds of the exercise, you know that. So we just put tag, if we put f of x in the place of x, we put f of 2. So we have to using 2. So whenever we have to use this 2, जहाँ पे भी हमें x दिखता है उसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 2 रख देते हैं. तो 2 का क्यूब हो गया माइनस 6x की जगह पे हमने रखा 2 का स्क्वायर हो गया 11, x की जगह पे हम रख रहे हैं 2 माइनस 6. जो भी पोर्शन हमें मिल रहा है, जो भी कैलकुलेशंस हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब आप करो तो 8 हो गया.
8 को 36 यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है। 2 का क्यूब 8 हुआ माइनस 36 हुआ प्लस 22 हुआ और माइनस 6 हुआ। ये सभी का सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास क्या बचता है 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्यों ऐसा बोले हमने? क्योंकि 2 रखने से ही पूरा पोलिनोमियल्स 0 हो जाता है। तो हम उस पोलिनोमियल्स की जो भी वैल्यू रख रहे हैं वो ही पोलिनोमियल्स का 0 हो जाता है। तो वी कैन से दैट कि p of 2 is a zero of f of x because f of x is equal to 0। तभी हम रख सकते हैं यदि x की जगह पे 2 रखें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द 10th स्टैंडर्ड। सो नंबर ऑफ zeros of the polynomials is the degree of the polynomials, therefore a quadratic polynomials has 2 0। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी थी 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यदि है तो इसकी डिग्री 2 है, तो उसके मैक्सिमम कितने ज़ीरो होंगे 2। ये भी याद रखना है। यदि हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स है तो इसकी डिग्री 3 थी, तो इसके ज़ीरो कितने होंगे 3 होंगे। तो ये चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो यदि ऐसा मेरे माइंड में क्वेश्चन होता है, आपको भी क्वेश्चन होगा कि यदि सर 2 और 3 क्यों लिया 1 क्यों नहीं लिया? यदि भाई 1 है तो इसके ज़ीरो भी 1 ही होगा, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 है वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है ना पोलिनोमियल्स का। तो 2 और 3 तो पता चल जाता है, बट 1 के बारे में हमें पता चलना है, क्योंकि इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है वो कैसे होगा ax प्लस बी होगा लीनियर के लिए। यदि क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, और क्यूबिक के लिए हम चाहेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में पढ़ के उसको भी जहाँ जहाँ पे भी ये टर्म्स या बेसिक टर्म्स लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का दिया गया है वो सभी को आप पकड़ के वहाँ पे रख सकते हो और वहाँ पे अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना लो, जितना भी हो सके आप याद रख लो। ये याद रखने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि लीनियर में कितने ज़ीरो होते हैं, क्यूबिक में कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं। और एक ट्राई की तरह आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप एक ट्राई की तरह ये भी देख सकते हो कि बाय क्वाड्रेटिक यदि हमारे पास है तो इसमें 0 3 से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं, लेट अस चेक। तो ये सब चीज़ है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर्ड 1 by 1। So now next one we have to going for the polynomials of degree 0 is called a constant polynomials, and we have to cover here y constant, f of x is equal to 7 only, so that is a constant. G of x is equal to minus 3 by 2, that is also be constant. H of x is equal to 2, that is also a constant polynomials. So a polynomials of degree 0 जिसकी डिग्री 0 है वो सभी पोलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं। दूसरी चीज़, ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 3, यानी ये डिग्री किसकी कितनी है 1 है। p ऑफ y इज इक्वल टू 3y, देयर इज़ नो एनी एक्सपोनेंट। देखो आप ध्यान से देखेंगे, सो देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ द एक्सपोनेंट। 4x माइनस 3 हैविंग 1 डिग्री, p ऑफ y इज इक्वल टू 3y, दैट इज ऑल्सो हैविंग 1 डिग्री। सो बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल्स। एनी लीनियर पोलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर पोलिनोमियल्स का यदि हमें जनरल फॉर्म्स या जनरल टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, किसके साथ हम कंपेयर करेंगे लीनियर को, ax प्लस b के साथ। इसमें आपको याद रखना है कि a और b है वो रियल नंबर है,
ए और बी रियल नंबर है एंड ए इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये फॉर्म में आपको दिखता है तभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल्स। सो it may be a monomial or a binomial having the two terms f of x is equal to 2x minus 3 is a binomial, where g of x is equal to 7x is a monomial, because of we can say that only one terms and that is having the two terms we have. So this is concerned about the portions related with the constant polynomials, linear polynomials and the basic forms of the linear polynomials, that is ax plus b. Just we moved on to the next portion, and this is we concern about that. First of all, a polynomials of degree 2 is called the quadratic polynomials. Under root 3x square minus 4 under root 3x plus 1 upon 2, and g of w is equal to 2 upon 3 w square plus 4 are quadratic. Why? Because it has the degree 2. Polynomials with the real quadratic polynomials with the real coefficient. यहाँ पे आप देखो तो जितना भी कोएफिशिएंट है, आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप देखो तो अंडर रूट 3 है, एफ ऑफ एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और एक्स का आप यदि कोएफिशिएंट लगाओ तो 4 अंडर रूट 3 है। तो ये चीज़ क्या है कि पोलिनोमियल्स तो फिर भी है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। जो एक्सपोनेंट की अभी तक हम बात कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट सिर्फ एंड सिर्फ किसका होना चाहिए, वेरिएबल का, और वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वो कभी रियल नंबर नहीं आना चाहिए, वो कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो होल नंबर होना चाहिए, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ पोलिनोमियल्स, अदरवाइज तो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। सो एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म, जैसे कि हमने पहले देखा लीनियर का ax प्लस b था, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम कभी भी कंपैरिजन करना चाहे कोई भी गिवन पोलिनोमियल्स का तो हम इस जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे। तो हमें याद रखना है लीनियर का क्या हुआ ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का क्या हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब क्यूबिक में जाते हैं तो क्यूबिक में कितने डिग्री होने चाहिए, 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको ये चीज़ बताई गई है कि क्यूबिक वाला पोर्शन है हमारा, वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम बताएं तो 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/5 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, एंड दिस cubic polynomials is concerned that variable x. Any cubic polynomials is always in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d। इसको ऊपर यहाँ पे f of x है उसके साथ आप कंपेयर करो तो सीधा सा कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा कि 5x क्यूब है, इसको किसके साथ कंपैरिजन करना है, ax क्यूब के साथ। माइनस 2x स्क्वायर है, यानी सेकंड टर्म्स ऑलवेज कैसा होना चाहिए, स्क्वायर वाला, यानी प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, थर्ड वन सिर्फ x वाला, एंड फोर्थ वन ऑलवेज बी कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि तीन चीज़ में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो, इसका जनरल फॉर्म्स हमने यहाँ पे देखा, और ये जनरल फॉर्म्स की वजह से ही हम आगे सभी सम कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको जितनी हो सके जल्दी से मैंने बताने का एक एफर्ट लगाया है यहाँ पे, और आप सब बड़े टैलेंटेड है, दैट्स वाई। यदि आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आपके हैं तो मैं ये डाउट आपको
अपने डिजिटल माध्यम से आपको सॉल्व कराने का पूरा प्रयत्न करूँगा। अब नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग ऑन टू द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, हाउ कैन वी पुट दिस पोलिनोमियल्स वैल्यू। अब ये चीज़ है, वो चीज़ हमें थोड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ऐसा बोलते हैं कि इफ़ p ऑफ x is a polynomial and y is any real number, then real number obtained by replacing x by y in p of x is called the value of p of x at x is equal to y and is denoted by p of y। मुझे ये चीज़ आपको इसीलिए समझाना है कि यदि मैंने ऐसा मान लिया कि p of x है वो एक पोलिनोमियल है और y कोई एक रियल नंबर है, तो यदि हम y की जगह पे x का रिप्लेसमेंट करते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू y बन जाएगा और बाद में p ऑफ x ऑलवेज बी कंसिडर द p ऑफ y। वेरी इजी थिंग्स इज दैट, बट हमें ये सब मैथमेटिकल सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक बात कर रहे हैं कि सपोज मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो एक पोलिनोमियल्स आपको दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब आप देखो तो p ऑफ x की जगह हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, बाकी एज इट इज़ पूरा पोर्शंस आपने ऐसे ही रखा। तो सिंप्लीफाइड करने से आपको ये पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या आई -3। तो कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप कोई भी p ऑफ x पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करें और आपको बताया गया होगा कि x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, या कोई भी वैल्यू आपको पुट करने को बोला जा सकता है। तो ये चीज़ से आपको ये पता चल जाता है, जो 9th स्टैंडर्ड में भी आप सीख कर आए, कि यदि हमें कोई भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हम फाइंड करें। तो ये चीज़ आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये पोर्शन यूज़ किया था। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बताने क्या पोर्शंस हम यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि रियल नंबर x इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0। फाइंडिंग ए जीरो पोलिनोमियल्स मीन्स सॉल्विंग पोलिनोमियल्स इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको ये बताएंगे कि कभी आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कभी आपको सीधा पोलिनोमियल्स को इक्वल करके 0 मीन्स आपको बताया गया होगा कि 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स इज सो एंड सो, सो पूरे पोलिनोमियल्स के इक्वल आपको क्या लगाना है 0 लगाना है। तो आप पहले से 0 कर देंगे तो f ऑफ x को आप दोनों तरह इक्वेशन में अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको वेरी हेल्पफुल है। इसके रिलेटेड एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, पहले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि सीधा x इज इक्वल टू 1 था तो x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देते थे, और हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये इक्वेशन के सामने हमने 0 रख दिया, क्योंकि zeros of the polynomials is equal to 0, f of x is equal to 0, that's why x square plus 7x plus 12 is equal to 0। तो अब x square plus 7x plus 12 ये पूरा 3 का टर्म्स है। हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स यदि यूज़ करते हैं तो इसका इक्वेशन, इसके फैक्टर्स हम लगाएंगे, तो वो भी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख गए हैं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यानी मिडल टर्म 7x है, और मल्टीप्लिकेशन में आपको 12 लाना है, और मिडल में आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन से 7 लाना है। तो 4 3 जार मतलब 4 में 3 ऐड करो तो कितना होता है 7 हो जाता है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 12। सो वी कैन पुट हियर
both of the things, x square plus 4x plus 3x plus 12. रिपीट करता हूँ, x square plus 4x plus 3x plus 12. So that's why we have to find out the two different factors, x plus 4 and x plus 3, both having the 0. So alternatively we are using x plus 4 is equal to 0, same way x plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 4 and x is equal to minus 3. So we have to find out here two zeros. अब ये माइनस 4 और माइनस 3 जो दो चीज़ हमें मिली है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 गिवन पोलिनोमियल्स के दो ज़ीरोज़ हैं. समझ में आ गया दोस्तों? स्टूडेंट्स, ये माइनस 4 यदि हम एफ ऑफ एक्स में माइनस 4 रखेंगे एक्स की जगह पे तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 0 ही आएंगी. आप वेरीफाई कर सकते हैं. माइनस 3 यदि रखा है एफ ऑफ एक्स की जगह तो भी ये पूरी पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी? 0. तो इस वीडियो वॉचिंग के बाद या पोज करके आप इसका सॉल्यूशंस -4 और -3 की वेरीफाइंग प्रोसीजर आप कर सकते हैं. करेंगे ना? सो दैट इज़ वेरी इजी थिंग. नाउ let us move on to the next portion, and that is related with the relations between the, so this is a relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomials. So just we have to check it out, that is one equations for it, and just we have to using these equations, that is more important, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है. तो एक रिलेशनशिप है वो सम की रिलेशन है, मतलब a प्लस बी की रिलेशनशिप देखनी है और साथ में मल्टीप्लिकेशन यानी a इंटू बी की भी हमें देखनी है. तो a प्लस बी का हमें यहाँ पे इक्वेशन याद रखना है दो तरीके से. यदि a प्लस बी रिलेशनशिप है पोलिनोमियल्स में तो इसका इक्वेशन कैसे होगा? तो कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे हमें किसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है? जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ओनली, यानी क्वाड्रेटिक हमें पता है कि जिसकी डिग्री 2 हो, इस टाइप का. और हमें ये भी जनरल फॉर्म सभी याद रह गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हम कर रहे हैं. तो इसमें यदि सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है तो इसका इक्वेशन कैसे याद रखेंगे? ए प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा भी आप याद रख सकते हैं. ए प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square is equal to minus b upon a. माइनस b upon a की बात हम करें तो coefficient of x की बात करो तो एक इक्वेशन सीधा सा आप लिखो. सपोज मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझो अच्छी तरह से कि मैंने ऐसा लिखा कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है? b है. तो यहाँ पे हमने रखा है b. बट ये फार्मूला हमें क्या सिखाती है कि माइनस लिखना है. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस, तो जो भी है x का कोएफिशिएंट क्या है? b, बट इसकी साइन क्या है? माइनस. दैट्स व्हाई वी पुट माइनस b. एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो जल्दी से इक्वेशन आपको याद रह जाएगा. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है? ये. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए होगा. तो इस तरह से हमने पूरा इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करके, पूरा जनरल टर्म के कंपेयर करके हमने याद रख लिया. और सेम थिंग वी आर यूजिंग इनटू द कांस्टेंट टर्म्स इनटू द मल्टीप्लिकेशन पार्ट. अब मल्टीप्लिकेशन की पार्ट की बात हम करें तो ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो दैट इज ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट हियर. सो बोथ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी इजीली. वन मोर थिंग, ए प्लस बी ए इंटू बी, यदि ये दोनों आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी आप ये याद रख सकते हैं. ये दोनों इक्वेशन जितने लिख कर याद रख कर आप कर सको इतने आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सकती है. सो विदाउट फेलिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस बोथ ऑफ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, बोथ इक्वेशन विथ द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
माइनस बी अपॉन ए, और ए इंटू बी का कांस्टेंट टर्म्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों तरह से आपको याद रखना है, और दोनों तरफ आप जितनी जल्दी याद रख सको इतना अच्छा है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, और जो नेक्स्ट पोर्शंस में है और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर गोइंग ऑन टू द next video, and also remember that you have to like and subscribe my video, my channel Rajendra Simori, maths teacher, and we will meet continued into the next video. Also describe in the description that you also read carefully the description under the YouTube, and everybody has to stay at home and stay safe. Thank you very much.